Okay, so if I say what we discussed in the previous lecture, so that is measurements. So the topic is measurements, और उसमें हमने जो डिस्कशन किया हुआ था चीज़ों का, वो मेन कंसर्न था फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. सो जो मेन पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. सो मैं आपको एक बार लेक्चर प्रीव्यू दिखाता हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके ना? Yes, sir. इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. You guys are still not in habit of answering. Yes, sir. Okay, yes. Believe me, yaar, you won't learn much if you are not answering anything, okay? Just by sitting and watching will give you nothing, no output, okay? So at least I know you guys don't have that in your habit, but bring it in your habit. Okay? You know the process of learning, you must bring it in your habit. चले देख लेते हैं what we discussed. We started the chapter named measurements. So to see the measurements, पहले हमने क्या डिस्कस किया? फिजिकल क्वांटिटीज. हमने उनके दो टाइप डिस्कस किए, फंडामेंटल एंड derived. Right. Okay. Then we came to the major topic, that was unit. हमने यूनिट का डिस्कशन किया हुआ है. Then we learn unit system. Till then any doubt? Till the unit system any doubt? No, sir. No, Okay. sir. Okay, good. So then after the unit system, I explained that we must use a single unit system in any question. Then we discussed representation of units. This point is clear? Representation? Yes, sir. Okay, very good. So after the representation, we learned some famous prefixes. ये सारे learn है क्या आप लोगों को? ये prefixes learn है? If not, you should have learned it. अच्छा एक चीज हो, one more thing, very important. Before the lecture thing, मतलब suppose Sunday you have lecture. So the thing is you have lecture on Sunday. So what will be the best thing? Okay, what will be the best thing? Before Sunday, let's say on Saturday, you must revise the things. Whatever lecture was there, you must revise what we studied in the earlier lecture. Revise करने से होगा क्या? You will come up with the doubts कि sir ये section समझ में नहीं आया. I'll explain it again. If you won't revise it, you won't get key what is the problem. Okay ना? So revise compulsory करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा section नहीं समझ में आया. And I'll explain it again. So proper understood हो जाएगा. Number 2, before the lecture there is a gap of half an hour. So even in that half an hour, you can revise in 15 minutes. That's not a like very big task. आपको सिर्फ देखना है कि previous lecture में कुछ missing तो नहीं है, कुछ ऐसा part तो नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. वो section ही आपको क्या करना है? देखना है. ठीक है ना? So you must be ready with your doubts. कभी भी जब हम next lecture लेते हैं. So अभी आप लोग learn करें. Right now everyone learn these famous prefixes. अच्छा कोई है जिसे ऑलरेडी लर्न है? एनीवन जिसको ऑलरेडी ये लर्न है सारे प्रीफिक्सेस, ये फेमस 8? एनीवन? Okay, not a big task. Learn them right now. Learn them right now. किलो क्लियर है सबको? Yes, sir. किलो? Yes, sir. सर या सर नैनो से भी छोटे यूनिट होते हैं ना? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. ये अभी जस्ट याद कर लेंगे ना. नैनो इज 10 to the power -9. माइक्रो भी आपको याद ही होगा. सर नैनो से भी छोटे होते हैं ना यूनिट्स?
नैनो के क्या? नैनो से भी छोटे यूनिट्स, हाँ, फिक्स, पिक्टो। नैनो से भी छोटे यूनिट्स रहते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, नैनो से छोटा रहता है एंगस्ट्रॉम, पिको, ठीक है, फेम्टो, ऑटो रहते हैं, बट दे आर नॉट फेमस ना. लाइक आई सेड, देर आर लाइक सो मेनी प्रीफिक्सेस. व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन क्लास 8 आर द फेमस वंस. ओके ना? Yes, sir. यस सर। ओके, देन यूनिट कन्वर्जन. इज दिस थिंग क्लियर? यूनिट कन्वर्जन सबको ओके है? Yes, sir. यस सर। Definitely. चले, so we'll start our lecture with the examples of unit conversion only. Let's see आप लोगों को अच्छे से clear है या नहीं. Okay, so I'll ask one by one. I'll give some examples. You need to answer them. Okay, let's see some examples. I'll say convert 5000 mu m into cm. चले, so who wants to answer this? Who wants to answer this? Guys, volunteer. Else I'll ask by name only. Who wants to answer this first? Okay, let's start with Aisha. Aisha, I'll help. Don't worry, I'll help. Yes, sir. Yeah. So first thing, what we'll see? ये क्या लिखा हुआ है? Micrometer. Micrometer. Very good. Micrometer. So if I want to convert it, this micrometer, micro का वर्थ कितना होता है? 10⁻⁶. 10⁻⁶. Very good. ये क्या हो गया? माइक्रोमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Meter. सिंपल मीटर में. वेरी गुड. तो ये कन्वर्ट हुआ, मैं माइक्रो की जगह किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 10⁻⁻⁶. ये किस में हो गया? मीटर में. अब मुझे कहाँ पे जाना है? Centimeter. सेंटीमीटर में. सो व्हाट इज द रिलेशन? बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻². 10:2. क्योंकि उल्टा होता है. अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो सेंटीमीटर का वर्थ कितना होता है? 10⁻⁻². -2. So if I say 1 meter will be, so 1 meter will be, 10⁻². yes, 10⁻²2 Yes. centimeter. So I must replace this meter with centimeter. समझ आया ना यार सबको? Yes. So the section will be 500 micrometer to, sorry, 5002 into 10⁻⁻⁶. और अभी मीटर को हटा के क्या लिख देंगे? 10⁻². Centimeter. सेंटीमीटर. तो देखो यहाँ पर पावर 2 है, 2 zeros, और यहाँ पर -6 है. कितना आएगा रिमेनिंग पावर? What will be the remaining power now? 10⁻⁻⁴. 10⁻⁻⁴. Very good. 10⁻⁻⁴ is there. So अभी 10⁻⁻⁴ मतलब कितने zeros? 4 zeros अपोजिट डायरेक्शन में कम करने हैं, डेसिमल प्लेसेस. ये आता है ना सबको? Yes, sir. यार, you guys are here to learn. Yes. Okay ना? अगर किसी को नहीं आता तो बता दो. I'll explain it in detail. How to solve the 10 power? 500 into 10⁻². इसको कैसे लिखेंगे? 2 zeros more ना? समझ आया? यस सर। And if I say -2, that means the decimal place will shift opposite direction. So this will become 5.00, which means it is 5. ये पक्का सबको आता है ना? Is there anyone? यार, पक्का आता है ना ये? Yes, sir. यस सर। Okay, fine. So let's see this particular one जो हमने क्वेश्चन देखा.
देयर आर -4 पावर, सो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर आएगा, सो द आंसर विल बी 0.5. पक्का क्लियर है? सो ये आयशा, ये आपको क्लियर है? ऐसा कुछ हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा हेल्प की या वैसा कुछ आपको समझ में आ रहा था ना? Yes, sir. Okay, fine. Let's see next example. Okay, you guys need to participate properly. ऐसा नहीं होगा कि I am just explaining. Let's see another one. Convert okay, I want to convert 0.6 hours into seconds. Very simple one. बताएं, who wants to answer this? You guys need to volunteer यार. yes sir. Okay, Rushil, बताएं, what I'll do to convert hour into second? Sir, you will multiply 0.6 into 60. ओके, आर को फर्स्ट आई कन्वर्ट इनटू 60 मिनट. आर को क्या कन्वर्ट करेंगे? 60 मिनट्स. बट आई नो इन 1 मिनट देयर आर 60 seconds. seconds. So this another 60 will be multiplied with one more 60, it will become seconds. समझा है नहीं यार सबको? Yes, sir. Yes sir. पक्का? It will come, if I multiply this, how much it will be? 256 I guess. समझा है नहीं यार सभी को? Yes, sir. Just a minute, I guess 6 cube is 216. 6 into 6, 36 into 6. 216 it is. Okay, अभी और एग्जांपल देते हैं. Next is convert 0. नहीं, let's say 20 centimeter per second square into meter per second square. Now, who wants to answer this? Who wants to answer this yaar? Sir, 0.2. Okay, Rushil, you have already answered. Let me ask someone else. Rushil, आप आंसर करें. Rushil. Yes, sir. बेटा आप आंसर करें कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी सेकंड में कोई चेंजेस किया क्या हमने? नहीं. किस में चेंजेस नहीं. किया है? सेंटीमीटर और मीटर. सो बताएं, मैं क्या कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर से मीटर के लिए? क्या कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर एंड मीटर में रिलेशन? 1 सेंटीमीटर का वर्थ कितना होता है? क्लियर या नहीं बताएं? Sir, यार बताइए, इज दिस वन क्लियर और नॉट? धैर्यशील. Yes. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा? 10 पावर -2 मीटर. क्या सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? वो तो ऑलरेडी सेम लिखा है ना.
ओके धैर्यशील बताएं नेक्स्ट, फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? यार दिस इज रियली अनोइंग. सर मैं बताओ. जस्ट अ मिनट रोशिल, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ. आर यू गाइज हियर टू लर्न और नॉट? If you want to learn something, you need to speak up. Okay, you need to leave your school habit कि you are muted all the time, you have joined the class and you go somewhere else. Like these sort of things are not good for a foundation course. So don't work like I need to ask again and again. Darashil, I asked you something. If you don't know, you can just say also, na, sir, I don't know how to solve. Okay, चले कोई बात नहीं. रुशिल बताए what it will be then? सर 0.2 मीटर. Okay, so there are -2, मतलब 2 zeros, the decimal place will slip, so it will result in 0.2 meter per second square. Fine, let's see few more examples. Okay, let's see हमें ये यूनिट्स में कन्वर्जन करना है. Okay, who's next? Shravani, will you answer this question? Will you at least try to explain the question? Sir, I am solving. Okay, okay. Okay, just instead of you solving it on paper, can you explain me, can you guide me how to solve so that the others will also follow up? Shravani. Shravani, will you explain how we should proceed to this question? 1 kg is equal to 1000 grams. Okay, so I need to convert first kg into gram. So this numeric value will remain as it is, and I must multiply how much? 1000. 1000. Make this thing in a gram. Then next, what next thing we should convert? Then meter to centimeter. 1 Meter meter to is equal to centimeter. 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Then this will become 100 centimeter. Then is there any changes to the second? No. No. So the second will remain as it is. So what result will come up with then? Multiply these. 0.02 into Let's multiply something. If we multiply by 100, it will become 2, then 1000. So it will become 2000 gram centimeter per second square. Clear now? Pakka, what about the others? Is it clear? yes, sir. Okay, very good, yaar. Very good. Okay, so I guess these things are very clear to everyone how to convert the things. पक्का कन्वर्जन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं, कन्वर्जन पार्ट इज ओके? Yes sir. Okay, now we'll come to the measurement. अच्छा, मेजरमेंट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेंथ मेजर करना. मेजरमेंट का मतलब है कि कुछ भी मेजर करना, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी डेटा मेजर करना, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? मेजरमेंट. मेजरमेंट.
ओके गुड। सो मेजरमेंट का मीनिंग क्या हुआ? मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? टू टेक रीडिंग्स और डेटा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर ना? एनी फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम बोलेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो जब यार हम रीडिंग लेंगे तो हमसे मिस्टेक्स भी होंगी ना? यस सर। ओके, सो वो मिस्टेक्स को हम क्या बोलेंगे? एरर। हम क्या बोलेंगे वो मिस्टेक्स को? एरर। एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? व्हाट आर द एरर्स? मिस्टेक्स। ओके, सो मिस्टेक्स मेड इन रीडिंग्स। अच्छा, जरूरी है कि आपको पता हो कि आप मिस्टेक कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना आपको पता ही नहीं है और मिस्टेक हो जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस सर। ओके, तो उस टाइप को हम ये लिखते हैं कि नोविंगली और अननोविंगली मिस्टेक कैसे भी हो सकता है। तो इसके लिए फिजिक्स में हम टर्म यूज करते हैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। एक तो है सर्टेन कि यार आप गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, और एक बार है आपको पता नहीं है। समझ आया ना? तो यस दो सर। टाइप से मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो मिस्टेक्स मेड इन रीडिंग्स और अनसर्टेनिटी इन एनी डेटा। समझ आया? एरर्स मतलब क्या है? क्लियर? यस। अच्छा, अभी एरर को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम कीवर्ड्स देखते हैं कि मेजरमेंट्स में कौन कौन से कीवर्ड्स हमें काम में आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा प्रिसीजन। क्या? प्रिसीजन। प्रिसीजन। अच्छा, एक होता है प्रिसीजन और एक टर्म होता है एक्यूरेसी। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग सेम है, आपको पता है ना? प्रिसीजन बोलो या एक्यूरेट बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। आपको पता है ना? मतलब आप बोलते हो ना यू आर वेरी प्रिसाइज और यू आर वेरी एक्यूरेट। सही है ना? यस सर। इंग्लिश में दोनों सिनोनिम्स है, बट फिजिक्स में इनका डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एग्जांपल रीडिंग्स। समझना, सपोज मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि जाओ एक टेबल की लेंथ मेजर करके आओ। ठीक है, तो सपोज एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, क्या मेजर करना है? लेट्स से लेंथ ऑफ टेबल नहीं, लेंथ ऑफ पेन। क्या मेजर की हमने? लेंथ ऑफ पेन। और बहुत सारे स्टूडेंट ने देखो कैसे आंसर दिए। लेट्स से मैं लिख देता हूँ 13.2 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने दिया 13.28 सेंटीमीटर। देन एक ने दिया 13.17 सेंटीमीटर। एक ने आंसर दिया 13.3 सेंटीमीटर। ये 4 आंसर्स हैं हमारे पास। बट अगर मैं बोलूं व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इफ करेक्ट आंसर is 13.24 सेंटीमीटर, तब बताओ which student perform the best result, A, B, C or D? Tell me, what's your opinion? Which student got the good results? Sir, A and B. Just a common sense thing. So you answered A and B. Is this okay to everyone? सबको दिख रहा है ना? Yes. ओके, सो बताओ आपने क्या सोचा?
मतलब मुझे पता है ये कॉमन सेंस की चीज है, बट मैथमेटिकली अगर एक रोबोट को एक्सप्लेन करना है तो आपने क्या चीज पे फोकस किया और आप यू केम अप विद द आइडिया कि ए एंड बी? Sir, because they are nearest. आपने क्या चेक किया दोनों के बीच का? Difference. डिफरेंस, वेरी गुड। क्या चेक किया हमने? डिफरेंस। Dif- तो किन के बीच में डिफरेंस सेम आया? ए एंड बी। कितना डिफरेंस आया? 0.04। समझा या नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके। अब मैं बोलूं कि यू नीड टू आंसर ओनली वन पर्सन, अब बताओ किसे बोलोगे आप? हु गॉट द गुड रिजल्ट्स? एक ही आंसर करना है। यार वेरी सिंपल यार, जस्ट यूज योर इंस्टिंक्ट। क्या लगता है किसने अच्छा किया है रिजल्ट? Sir, B. बी, डेफिनेटली बी। यार बताओ, अब आप बताओ व्हाई यू थॉट कि बी ने अच्छा किया है, बताएं। Sir, because it is more than the length of paper. Length of मोर देन इज नॉट आंसर, नॉट मोर देन, देयर इज समथिंग एल्स। और कोई बताए क्यों लग रहा है कि बी ए से अच्छा कर रहा है? It is near to the answer. सॉरी योर वॉइस इज, It is near to the answer. नहीं, बोथ आर नियर टू द आंसर। कुछ और, व्हाट इज द प्रिसाइज टर्म, एक क्लियर बताएं। बोथ आर नियरर, बोथ हैज द डिफरेंस 0.4। दिस स्टूडेंट चेक टू द नेक्स्ट डिजिट। केयरफुल स्टूडेंट है, इसने नेक्स्ट डिजिट भी नहीं देखा। समझा या नहीं? yes, sir. Yes, sir. सो दो टर्म आते हैं क्या? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये रिजल्ट का जो डिफरेंस है ये क्या है? एक Error. एरर। तो जिसने कम अच्छी एरर की मतलब वो अच्छा रीडिंग कर रहा है। तो एरर से रिलेटेड टर्म क्या है? Accuracy. Accuracy. एक्यूरेसी, कि किसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, दोनों का, ए और B. बी का। लेकिन अच्छा किसका है? B का. बी का। वाई? बिकॉज इट इज प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मीनिंग होता है हाउ इन डिटेल यू कैन आंसर। सपोज मैंने कहा लेट्स से ओलंपिक में कोई 100 मीटर रेस पे रन कर रहा है एंड हिज टाइम इज लाइक 10.1 सेकेंड। अच्छा, जबकि किसी एक स्टूडेंट ने बोला है सर 10.17 है, तो मतलब ये बहुत ही प्रिसाइज दे रहा है ना आंसर। Yes, sir. लेट्स से करेक्ट आंसर वाज 1.1। तो बताओ हु इज मोर क्लोज, ए और बी? B. नो, you guys are not looking properly. Who is more accurate? करेक्ट किसका है आंसर? करेक्ट किसका आंसर ज्यादा है यार? 10.11. A का. ए का करेक्ट है, लेकिन प्रिसाइज किसका ज्यादा है? B. B. बी का। तो अभी डिफरेंस समझ आया कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज दो अलग अलग चीजें हैं। Yes, sir. तो I'll write them in words, तो वो और क्लियर आ जाएगा कि एक्यूरेसी किससे रिलेटेड है और प्रिसीजन। एक्यूरेसी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द एरर, इट इज रिलेटेड टू Error. एरर। और एरर क्या चीज है? डिफरेंस, डिफरेंस इन द वैल्यूज। ओके, इट इज रिलेटेड टू एरर, मतलब लेस एरर मींस मोर एक्यूरेट। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अच्छा, प्रिसीजन मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट?
It is related to the instrument being used. Means in how detail मतलब ये किस पे डिपेंड करता है कि रीडिंग कितनी ज्यादा डिटेल्ड है। मतलब अभी समझना है, कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ। देखना, सोचो जब मैंने भी बताया था एक रनर है, आप उसका टाइम पीरियड चेक कर रहे हो, ठीक है। उस रनर का टाइम पीरियड आया, आप नॉर्मल क्लॉक से, वॉच से, जो आप रिस्ट वॉच पहनते हो ना, वो वाली वॉच से अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम आप देखो ना, उसमें 10 के बाद नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? सीधा 11 सेकेंड। बीच में कुछ होता है क्या? पता चलता है क्या कि 10.1 है? नहीं, क्लॉक हमेशा टिक करती है और 1 सेकेंड पूरा एक साथ में टिक करती है। ये समझ में आता है ना सबको? Yes, sir. लेकिन अगर आप मोबाइल स्टॉप वॉच यूज करोगे तो उसमें आपने नोटिस किया होगा 10 के बाद में 2 डिजिट भी मूव कर रहे होते हैं। नोटिस किया मोबाइल स्टॉप वॉच? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं वो एरर पे डिपेंड करेगा, कितना अच्छा आंसर है। लेकिन प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है? Watch. वॉच मतलब इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिटेल बता सकते हैं। समझा या नहीं? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो अभी हम आगे इन डिटेल इसे डिस्कस करेंगे और बट बेसिक्स क्लियर है या नहीं? व्हाट इज एरर, व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी? Yes, sir. ओके, तो मैं इसमें बात करूं कि अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एरर। सो द टर्म यूज्ड इज एब्सोल्यूट एरर। क्या? Absolute. एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या एग्जैक्टली एरर हो रही है? तो फिजिक्स में एक सिंबल यूज होता है डेल्टा। आपने ये सिंबल पहले सुना है, इसका नेम डेल्टा। ट्रायंगल टाइप होता है। क्या होता है इसका मतलब? Delta. डेल्टा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या नेम देते हैं? डेल्टा। और फिजिक्स में इसका मतलब होता है क्या? किसी को पता है क्या किस लिए यूज होता है ये सिंबल? चेंज के लिए, चेंज ऑफ समथिंग। किसके लिए यूज होता है? Change of something. तो अगर मैंने लिख दिया डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हुआ? किसका चेंज हो रहा है? लेट्स से टी मतलब टाइम है, तो क्या हुआ ये? Change of अरे time. डेल्टा टी का मतलब Change of. चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम, वेरी गुड। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज ऑफ समथिंग। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर इस रीडिंग में डेल्टा लगा दूंगा तो वो हो जाएगा चेंज ऑफ दैट रीडिंग। तो वही तो इनडायरेक्टली क्या होती है हमारी? Error. एरर। तो अब देखना, मैं एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा, तभी बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा सबको। मैंने एग्जांपल ले लिया रीडिंग्स, कुछ रीडिंग ले ली मैंने, ठीक है। तो रीडिंग्स आ गई हमारी कितनी? 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? 13.28 सेंटीमीटर, 13.17 सेंटीमीटर एंड 13.3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हमारी Readings. रीडिंग्स। अब हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू। क्या? रियल वैल्यू, Actual. एक्चुअल वैल्यू। उसको पता है हम क्या बोलते हैं? एक मैथमेटिकल सिनेरियो होता है, जब हमें कुछ पता नहीं होता एक्चुअल वैल्यू तो हम हमारी रीडिंग्स का क्या ले लेते हैं? एवरेज। क्या ले लेते हैं? Average. एवरेज। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग का मतलब ये ट्रू रीडिंग। क्या? True reading. ट्रू रीडिंग। तो वो कैसे निकालते हैं मैथ में? अगर आपको ट्रू रीडिंग पता नहीं है और आपको ट्रू रीडिंग निकालनी पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? Average. एवरेज लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। और फिजिक्स में, मैथ में टर्म यूज करते हैं एवरेज। फिजिक्स में एवरेज का एक और वर्ड होता है, क्या? मीन। सुना है आपने मैथ में भी? No. मीन। सो एवरेज। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करते हैं और नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? Yes, sir.
तो मैं लिखता हूँ क्या, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम सॉल्विंग एवरेज वैल्यू। क्या, एवरेज वैल्यू। तो डेफिनेटली कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज वैल्यू, सबको ऐड करेंगे। 13.2 प्लस 13.28 प्लस 13.17 प्लस 13.3 और किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर। कितनी रीडिंग्स हैं, 4. 4. 4। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या रखते हैं, बेसिकली यहाँ पे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। क्या, Total number of readings. या टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। सो दैट्स हाउ वी फाइंड आवर रियल वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने इसे रैंडम लिख दी थी, बट इफ इट इज नॉट गिवन तो कैसे यूज करेंगे, एवरेज निकाल के। डन ना। Yes, sir. चलो तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। लेट्स ऐड इट। बताओ इसका समेशन कितना आएगा, चलो ऐड कर लेते हैं। सो 3 7 8, क्या आंसर आएगा, लास्ट डिजिट 18। कैरी क्या आया, 1। सो 2 2 4 1, सॉरी माय मिस्टेक यार, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 0. 0। ओके, so it will be 5, remaining 1, 2 2 4 1 5, 5 3 8 8 1 9 पॉइंट, बाकी ऐड करें 52। समझा सभी को। Yes, sir. डिवाइड बाय 4, चले 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करें। सो 4 1 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 4, कैरी क्या आया 1। सो 1 and 2 क्या बन जाएगा 12। सो कितने टाइम्स गया, 13 पॉइंट। फिर 4 से 9 को करेंगे, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, कैरी क्या आया 1। ओके, सो फिर 15 को कितना टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स 12, रिमेनिंग कितना है 3। फिर एक 0 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, नियरली 7 टाइम्स। सो अगर मैं इसे 2 डिजिट में बनाऊं तो ये 7 हट के क्या बन जाएगा यहाँ पर। 3. आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना आता है। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो लेफ्ट में क्या करते हैं, 0. एक ऐड करते हैं। ये पता है राउंड ऑफ करना, वी कैन राइट इट दिस। यार वेरी सिंपल, पहले बताओ आपको ये पता है या नहीं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। No, sir. No. यार बहुत सिंपल सी बात है। इफ यू नो देन आंसर यस सर, इफ यू डोंट नो देन आंसर सर प्लीज एक्सप्लेन। Sir, please Sir, please explain. या सो Please देखें, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। व्हाट हैपेंस, देखें यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सपोज एक जगह पे लिखा हुआ है 50.7, approximately you can write it 51. So what is the reason, when you remove a number which is greater than 5, if it is more than 5, क्या, more than 5. 5, then add 1 to previous number. okay, समझा या नहीं। इसलिए वो 0 के जगह पर क्या बन गया 51। क्लियर। और अगर लेस देन 1 है देन नो प्रॉब्लम। सो अगर ये लिखा होता है क्या 50.2, तो अप्रोक्सीमेटली इसे क्या ही लिखते हैं 50. 50। समझ आया कि नहीं, कॉमन सेंस। Yes, sir. ओके गुड। if it is less than 5 then just remove, सीधा रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी इफेक्ट। चलो एक और देख लेते हैं, लेट्स से आप लोग को ये समझ आया या नहीं। हाँ, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। देखें Sir, या
If it is 15.5. Yeah, next one will be the same. Okay, just a minute. That's a good question. What will happen if it is 5? But before that, let's see the examples. Suppose it is 23.68 and I want to round it off to one digit. So approximately I can write it 23 point how much? 7. Clear or not? Yes. Yes. Clear na sabko? Okay, next. If it is 25.82, what we should write it then? 8. 8. If it is 137 and we want to write it 530, is it correct or not? Not. No, sir. नो क्या लिखना चाहिए अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए तो? 540. 540. समझा या नहीं सबको? Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं व्हाट विल हैपन इफ इट इज 5. सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा. क्या? इफ इट इज 5, okay, if it is 5, then if previous number is even, then no change. अगर even है तो कोई change नहीं होगा. And if previous number is odd, तो उसे क्या बना देंगे? Add 1. समझा या नहीं? Yes, sir. Can you Can give example? Yeah, sure. Let's see. So if it is 55.45, so what we must write it? 55 point. प्रीवियस वाला क्या? इवन है. इवन है तो क्या करेंगे? No change. No change. नो चेंज, ये रहेगा. एंड अगर मैंने दिया 55.75, देन 5.7. 7 बाय 8. Sorry. ऐड. या समझ आया नहीं? हाउ टू Yes, डू sir. द अप्रोक्सीमेशंस? Yes, ओके. sir. सो यहाँ पे क्या था, मैंने करेक्ट आंसर आपको दे दिया था, बट नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द करेक्ट आंसर. इट इज द Yes, sir. एवरेज वैल्यू. क्लियर? Yes, sir. Okay, so I'll remove this line actually. Before absolute error, we must see the things. I'll place a heading of error here that we want to discuss the errors. Okay. यहाँ पर so पहले हमें रीडिंग ली, हमने एक्चुअल रीडिंग फाइंड कर ली. अब टू फाइंड द एरर हमें क्या करना पड़ेगा? सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्लियर ना? So I'll write the term absolute error. So how to find the error? I'll write error means reading minus true value. क्लियर ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगी एरर. तो चलो सबका एरर निकाल के रखते हैं. हाँ, एरर को कैसे लिखते हैं? डेल्टा से. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से. Delta. तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ क्या? रीडिंग्स. मैं लिख देता हूँ रीडिंग्स. तो रीडिंग्स क्या आई थी? याद है क्या किसी को? 13.2, 13.28, 13.17. 13.17 एंड 13.3. ओके, वेरी गुड. ये रीडिंग्स हुई. तो इनका पहले कुछ नेम दे देते हैं ना. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा? एरर्स. क्या फाइंड करूंगा? Errors. एरर्स. सो इसके लिए क्या होगा? ए की एरर. तो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा ए. समझ आया ना? Yes, sir. तो वो कितना हो जाएगा? 13.2 माइनस 13.24 कितना आया? माइनस का 0.04. ओके ना? Yes, sir. Yes. बी में एरर कितना हुआ?
13.28 माइनस 13.24 24 समझा या नहीं? 0.04 04 सी में एरर कितना आया? 30 कितना आया? नेगेटिव आएगा 0.07 समझा ना? सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना आप लोग? यस सर ओके डी में एरर कितना आया? 13. सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना एरर आया? पता है ये कुछ चीजें कॉमन सेंस से कर लेना चाहिए. कंसिडर इट लाइक 30 ना. 30 में 24 जाएगा कितना आया? 6 समझा ना? यस तो सर स्टेप 1 हमें अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है सो वी मस्ट नीड ट्रू वैल्यू वैल्यू ट्रू वैल्यू और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरर. एरर अच्छा एरर प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने पूरे क्लास को दिया, उसमें 4 स्टूडेंट मैंने पिक किए और ABCD वो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एरर निकाल दी अपनी अपनी. बट इससे क्या क्लासरूम का इवैल्यूएशन हो पाएगा क्या? नहीं. तो अगर मुझे पूरे क्लासरूम की एरर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका क्या लेना पड़ेगा? ये सारी एरर का क्या ले लूंगा मैं? अरे क्या ले Average. लेना चाहिए? एवरेज ले लेना चाहिए. एरर ऑफ होल ग्रुप. क्या? Error of whole group. होल ग्रुप. तो मुझे क्या लेना चाहिए? इट इज एवरेज ऑफ ऑल एरर्स. ओके अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये थी क्या? देखो गलती तो गलती है, एरर मतलब मिस्टेक्स. तो किसी स्टूडेंट ने पॉजिटिव किया, किसी में ने नेगेटिव, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना आपको. ये प्लस और ये माइनस क्या कर देंगे एक दूसरे को? Minus. माइनस मतलब खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो एरर तो उल्टा कम हो गई ना. तो इसका मतलब जब एवरेज एरर निकालते हैं तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं. क्लियर या नहीं? यस सर Yes sir. यस सर पक्का सबको? यस सर ओके Yes sir. सो मैं यहाँ पर लिखूंगा एवरेज एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर. तो वो क्या कर देंगे? एवरेज ऑफ ऑल. सो इग्नोर करना है साइन तो क्या लिखेंगे? 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.07 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 4. समझा या नहीं? Yes, sir. इग्नोर द नेगेटिव साइन. क्लियर? अच्छा तो ये पूरे किसकी ग्रुप की आ गई कि चलो यार ये मैंने क्लासरूम को दिया और वहां पर इतना आंसर आया. तो चले इसे सॉल्व करें, ऐड करें. कितना हुआ ये? 0.21. 0.21. ओके 0.21 डिवाइड बाई 4. लेट्स सॉल्व इट. सो ये कितना हुआ? 0. फर्स्ट 2 पे तो डिवाइड नहीं जाएगा सो इट विल बी 0. देन इट इज 21. कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स. बट 5. रिमेनिंग आएगा 1. 1 सो 0. ऐड करेंगे कितना आएगा? 2. देन 2. और एक बार जाएगा 5. सो इट विल बिकम 5. 5. 5. बट मुझे इतने सारे डिजिट चाहिए क्या एरर में? नहीं, 2 ही चाहिए ना. सो मैं क्या करूंगा इसको? अप्रोक्सीमेट. ये सिंबल है पता है? इक्वल मतलब ये और करली इक्वल्स मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. ये सिंबल समझ आ रहा है ना? Yes sir. सर ये मतलब इक्वल टू और ये मतलब अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली. सो देखें अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे? इस 5 को हटाएंगे तो ये 2 चेंज होगा क्या? बताइए. अभी रूल पढ़ाया. हाँ ये 2 3 हो जाएगा क्या? Sir, it will remain same. लेट्स सी द रूल. अब बताओ. Sir, it will remain same. इफ इट इज इवन इट विल Remains same. सेम
remain same. So the next approximation will be 0.052. बट क्या मुझे 3 डिजिट चाहिए क्या? 2. नहीं, कितने चाहिए? नहीं, 2. दो तो आंसर है 0.05. 5 समझ आया या नहीं? समझ आए। सर। अच्छा, तो इस तरीके से एक टीचर कंपेयर कर सकता है किसी क्लास के रिजल्ट से, वो तो ठीक है, बट क्या टीचर को इतनी पूरी कैलकुलेशन दिखानी होती है क्या? नहीं, आपको एक फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। आंसर। तो यहाँ पर देखें, हाउ टू एक्सप्रेस योर फाइनल रिजल्ट, कैसे लिखेंगे? फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट होता है ट्रू वैल्यू प्लस पूरे ग्रुप की एरर। समझ आया ना? बट Yes, sir. प्रॉब्लम एक ये है, इसमें प्रॉब्लम एक ये है, यहीं पे लिख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट में एक प्रॉब्लम है कि यार आपने नेगेटिव को इग्नोर किया था ना, यस सर। तो टीचर क्या sir. श्योर है क्या कि ये पॉजिटिव वाली एरर है या नेगेटिव वाली एरर है? नो सर। नहीं, No. नॉट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक रिजल्ट है, रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है कि फाइनल रिजल्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू एरर। तो ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? 13.24। और एरर के लिए क्या लेटर यूज किया जाता है? प्लस एंड माइनस। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी एरर है, प्लस एंड माइनस 0.05 की यहाँ पर हो सकती है। किससे? हमारे क्लास से। मतलब सपोज मैंने बोला कि यार 8th वाले स्टूडेंट को मैंने उनके एक पेन की लेंथ मेजर करने के लिए बोला, तो हमेशा फाइनल आंसर ऐसे दिया जाता है, सर आवर आंसर इज 13.24 but we do not know, there can be a error of plus minus 0.5. मतलब the correct answer is in the range of 13.19 to 13.29. समझा या नहीं? Yes, sir. The classroom 8th is saying कि sir we do not know the exact answer, ये तो हमने एवरेज निकाला है, it has certain error, so the answer will be in this range. अभी सिग्निफिकेंस समझ आया कि what is the significance of this error and experiment? यस सर। अच्छा, अब बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। क्या? कंपेयरिंग टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब मैं नेम देता हूं, मान लेते हैं क्लास ए और दूसरा क्या है? क्लास बी। बी। अभी देखो दोनों के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देखना। क्लास ए का एक्सपेरिमेंट था लेंथ ऑफ पेन, क्या है, और उनका रिजल्ट क्या आया? 13.24 इंटू प्लस माइनस 0.05। कोई डाउट क्या इसमें? समझा? और यस क्लास बी को मेजर करना था क्या? लेंथ ऑफ टेबल। अब आप लोग क्लास ए के स्टूडेंट्स हैं, आपको बी के बारे में नहीं पता, बट मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने रिजल्ट ये दिया। आप बात समझ रहे हैं? सुने, तो उन्होंने रिजल्ट दिया 70.25 प्लस माइनस 0.09। बताओ whose experiment is better? बताए। क्लास ए या क्लास बी? थिंक लाइक अ टीचर। अगर उस टीचर को बोलना है, बताओ क्लास ए ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया या बी ने? बताओ। बताएं। Class A. क्लास ए की एरर कितनी है? 0.05। कितनी है? 0.05। एरर ऑफ क्लास बी 0.09। फिर भी कुछ आपको ऑड नहीं लग रहा है कि यार
मुझे तो लग रहा है कि बी ने अच्छा किया। कोई बता सकता है क्यों? सर क्योंकि जब परसेंटेज में निकाले तो कोई बता सकते हैं? मुझे लग रहा है बी ने किया है अच्छा। वाई? एनीवन? I think the B is have done better experiment. कोई explain कर सकता है what is the reason? sir Common sense. they have measured length of table. हाँ समझो, इन्होंने 13 में इतने की एरर की है और इन्होंने 17 में इतने की। सोचो मैं 13 का 2 टाइम्स करूं कितना? 26। तो ये लोग अगर ये 26 मेजर करते तो ये कितने की एरर कर डालते हैं? 0.10 0.5 का डबल 1 की, जबकि इन्होंने 70 में जाके इतनी एरर की। और इजी बनाते हैं, एक स्टूडेंट ने 10 में कितने की एरर की? 1 में, जबकि एक स्टूडेंट ने 30 में 2 की एरर की। किसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया? 10 ने ए ने, बी ने? 30 ने 30 30 वाले ने। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 मेजर करेगा तो ये कितनी की एरर कर डालेगा? 3 3 की। तो क्या मैं एब्सोल्यूट एरर देख के दो डिफरेंट ग्रुप्स का कंपेयर कर सकता हूं क्या? नहीं। समझा या नहीं? yes sir समझ आया? तो मैं ये बोलूंगा, इज एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास ए बेटर देन बी? बताओ। नो, आंसर इज नो। व्हाई? इन कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस हम एब्सोल्यूट एरर नहीं देखते हैं, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव। क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव रिलेटिव एरर। सो फॉर कंपेरिजन वी यूज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव मतलब क्या है? कॉमन सेंस। देखना है रिलेटिव क्या है, कॉमन सेंस समझना। बताओ। अच्छा, एक ने 100 में 4 की एरर की और एक ने 500 में 8 की एरर की। किसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया? बी 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 ने। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे 500 कर दोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? 20। 20 इसका मतलब कॉमन सेंस ये है कि हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि 4/100, मतलब बिकॉज यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। 100 में एरर कितनी है? 4। सो 1 में एरर कितनी होगी? 4/100। और इसका क्या चेक कर रहे हैं? बिकॉज 500 में कितनी है? 8। सो 1 में कितनी होगी? 8/500। सो हम रेफरेंस किसे ले रहे हैं? 1, कि 1 चेंज की वजह से कितनी एरर होगी। तो इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिलेटिव एरर। तो मुझे लगता है अभी तुरंत सबको समझ आ जाएगा कि रिलेटिव एरर कैसे निकालनी है और कैसे कंपेयर करने हैं दो डिफरेंट लोगों के रिजल्ट। सो देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, रिलेटिव एरर कैसे आएगी बताओ? एब्सोल्यूट एरर अपॉन true value ट्रू है समझा कि नहीं? यस सर अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिलेटिव एरर है ना, ये बहुत डेसिमल में आता है। लाइक 100 में 4, आंसर क्या आएगा? 100 मतलब 0.04। तो यार ये फील करने में थोड़ा कम अच्छा लगता है। अगर मैं परसेंट की बात करूं तो 4 कितना परसेंट है 100 का? 4 4% है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं 500 में लेट्स से 10 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 500? कैसे निकालेंगे? 10/500 into 100 100 पता है ना, बेसिक मेथड है, क्लास 7th में रहता है कि दिस Yes, मच इज हाउ मच yes, परसेंट sir. ऑफ टोटल। 2 तो ये चीज होगी, मतलब 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक बड़ा नंबर है ना,
तो इस एब्सोल्यूट को और अच्छा बना देगा। तो रिलेटिव एरर के बाद एक और नई चीज सीखते हैं हम, क्या क्या सीखते हैं? परसेंटेज एरर। Percentage error. और वो क्या होता है? रिलेटिव एरर में क्या करते हैं? इनटू 100। समझा? तो बताए दोनों चीजें क्लियर है या नहीं? Yes, sir. रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये किस काम में काम आते हैं? दोनों के कंपैरिजन में काम आते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना होता है? कोई भी टीचर आपको बोलता है तो फाइनल आंसर होनी चाहिए क्या? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कौन सी एरर? Percentage. Percentage. अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसका एक्सपेरिमेंट अच्छा है किसका नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सो एक एग्जांपल देखें। क्लियर? एक एग्जांपल देखें। Yes, sir. चले एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर समझ लेते हैं। लेट्स सी, सपोज क्लास A made an error of 0.5 in 20 centimeter and class B made an error of 1.2 in 96 centimeter. क्लियर? कंपेयर द रिजल्ट्स। अब हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करने हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग है ना। इसके एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू क्या है 20 और इसके एक्सपेरिमेंट की 96. 96। तो दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना, तो कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों का क्या फाइंड करेंगे? Error. Percentage. परसेंटेज Percentage. एरर ऑफ ए। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? Relative value into 100. एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो क्या होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100. 100। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. चलो बहुत बड़ा। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा? ये 50/20। एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया? 2.5%। समझा या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट इज सेकंड वन। बताओ इसमें क्या करेंगे फिर? बताएं। 1.2 upon 96 into 100. वेरी गुड। 1.2 ओवर 96 इंटू 100। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बी 120 बाई 96. 96। अब यार इसे डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 10 टाइम्स और ये हुआ 8. 8 टाइम्स। और फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से कर सकते हैं। ये क्या आएगा? 5/4। 5 upon 4. पूरा डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.25। समझा? Yes, sir. तो देख रहे हो किसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा बेटर है? Yes, sir. रिजल्ट्स दोनों के कैसे लिखेंगे? ए ऐसे लिखेगा, कैसे लिखेगा? 20 प्लस माइनस हाउ मच परसेंटेज एरर? 0.5. 2.5। बी कैसे लिखेगा? 96 प्लस माइनस 1.25. 1.25%। So the error is less in B. Clear? Yes, sir.
मुझे लगता है it is very clear about the error part, how we find an error and how we express our results so that teacher can compare with the different classes. समझ आया या नहीं? Yes, sir. So should I give one more example, one final example, which you guys need to solve? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Okay, so let me give an example. और वो पूरा आप लोग सॉल्व करके बताओगे, पूरा फुल एग्जाम्पल. So let's say I'm saying कोई दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं. A classroom or let's say 5 students. कौन सा एक्सपेरिमेंट ले ले, लेंथ का एक्सपेरिमेंट ले ले या कुछ टाइम का ले ले, एक्सपेरिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, सो चले ले लेते हैं. लेट्स से 5 स्टूडेंट मेजर्ड द टाइम ऑफ fall of an object when dropped from a table as. सो इन्होंने मेजर किया, देखें क्या क्या मेजर किया. एज 0.9 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.0 सेकेंड, 1.2 सेकेंड एंड 1.3 सेकेंड. समझा सभी को? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द परसेंटेज एरर and final result of dropping time. Okay, everyone, then solve it. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फाइनल रिजल्ट में मेन रिजल्ट, वो कैसे निकालते हैं बताएं? Sir, we have to add all the numbers and divide Okay. by. एग्जैक्टली, सबका क्या निकालते हैं? एवरेज. तो Average. उससे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग. क्या लिखेंगे? Experimental reading. रीडिंग्स. तो मैं एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग सारा कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. सो लेट्स से एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स आर 0.9, next 1.1, next 1.0, next is 1.2 and last is 1.3. चलो अभी फास्ट सॉल्व करें. These are the experimental readings. So अभी हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? सबसे पहले Average. एवरेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? True value. वैल्यू. और वो हम कैसे निकालते हैं? एवरेज से. चले सॉल्व करें. एवरीवन सॉल्व दीज थिंग्स, देन आई विल चेक. सॉल्व इट एवरीवन. Sir, average is 1.1. Okay, let's see how much is the average. Let's add them. 0.9, 1.1, 1.0, 1.2 plus 1.3. Divide by how many students are there? 5. 5. So add किया कितना आया? 5.5. Yeah, 5.5.
5 डिवाइड बाई 5. ओके, देन आंसर कितना आ गया? 1.1. समझा या नहीं सबको? आप क्या फाइंड करेंगे सबका? error. Error. यस, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल. क्लियर ना? Yes, sir. तो बताएं सबका एरर क्या क्या हो जाएगा. फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का क्या होगा? आंसर इज 1.1 जबकि उसका रीडिंग कितना था? 0.9. 0.9. सो आंसर कितना हुआ? 0.2. 2. समझा? सेकंड बताओ. Sir, 0. सेकंड इज 1.1 तो उसका कोई एरर हुआ क्या? नहीं. नहीं, सेकंड सबसे अच्छा स्टूडेंट था. थर्ड 1.2 0. सॉरी 1. नहीं 1. 1. सो कितना हुआ? 0.1. 0.1. नेगेटिव का 0.1. फिर फोर्थ कितना हुआ? प्लस 0.1. एंड फिफ्थ सर आपने 1.3 क्यों लिखा है? सॉरी माय मिस्टेक. ये देन ये 1.3 है, माइनस किया क्या आया? 1.1. 1. सो आंसर है 0.2. 0.1. अभी देखो, अगर आप इन सबको डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो 0.2 माइनस वाले 0.2 से कैंसिल, 0.1 इससे कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो डायरेक्ट नहीं ऐड करना होता है, विदाउट साइन ऐड करना होता है. याद है ना? Yes, sir. तो अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज एरर. क्या निकालेंगे? Average error. Average error. एवरेज एरर क्या हो जाएगी? सारी एरर को विदाउट साइन ऐड करेंगे ना. Yes, sir. 0.2 प्लस 0 0.1. प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2. ओके ना? डिवाइड बाय हाउ मच? 4 और 5? 4. डिवाइड बाय Because 4 और 5 बताओ. 4. 4. नहीं, वो Sir, स्टूडेंट 5. अच्छा था कि 0 एरर आया, उसका मतलब ऐसे थोड़े ना उसे काउंट नहीं करेंगे. 5. कितना यूज 5. करेंगे? 5. चलो ऐड करो, कितना आया आंसर? 0.6 बाई 0.6/5. 5. तो ये कितना आएगा? 0.12. समझा या नहीं? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये हो गई एवरेज एरर. अभी क्या करेंगे? लास्ट फाइनल क्या फाइंड करेंगे? Percentage error. बिकॉज दिस इज अवर फाइनल आंसर, परसेंटेज एरर. तो कितना हो जाएगा ये? चलो पहले मैं रिलेटिव फाइंड करके दिखाता हूँ कि रिलेटिव अच्छा आंसर नहीं आता है. ओके, रिलेटिव का आंसर थोड़ा सा डिवाइड में रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता. रिलेटिव एरर तो टीचर्स लोग को समझने में परसेंटेज एरर ज्यादा इजी पड़ता है. बताओ रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? एरर डिवाइड बाई True value. 1.1. ट्रू वैल्यू. सो इट इज 1.1. तो चलो डिवाइड करते हैं, डेसिमल्स को हटा देते हैं. सो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई पॉइंट नीचे आएगा 110. डिवाइड कर पाओगे क्या इसे? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होगा ना. इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव एरर बहुत ही फ्रैक्शन में आता है. अच्छा एक चीज और, रिलेटिव एरर फ्रैक्शन में आता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिलेटिव एरर को एक और नेम से भी बोलते हैं. क्या? Fraction. फ्रैक्शनल एरर. ओके, क्या? Fractional error. फ्रैक्शनल एरर, उसका मीनिंग रिलेटिव एरर ही होता है. अब हमें लेकिन क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर. तो क्या करना पड़ेगा हमें रिलेटिव एरर में? Into 100. Into 100. इनटू 100 करेंगे. अभी 100 करेंगे तो ये थोड़ा सा सिंपलर हो जाएगा. एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. 120 डिवाइड बाई 11. समझा ना? तो अभी डिवाइड कर लेते हैं. कितना परसेंट आएगा? 1 टाइम्स जाएगा, फिर 1 कैरी आएगा 10. डिवाइड जाएगा क्या? 0.9. नहीं,
फिर आएगा 100, सो नियर अबाउट 9, सो 10.9% के अबाउट आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 11. 11%. So what is the final result then? 11%. Okay, so final result is आंसर आया था हमारा 1.1 सेकेंड, प्लस माइनस एरर कितनी थी 11%. 11%. अब पॉइंट आती है कि जो परमिसिबल एरर होती है ना, मतलब टीचर जिसको बोलता है ठीक है चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट, वो कितनी होती है 5%. 5%. तो अभी आप लोग बहुत ही अभी 8th में हो, अभी तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते. जब आप 10th 11th 12th में जाओगे तो आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट होगा और आपको फाइनल रिजल्ट में एरर लिखनी होती है. तो थोड़ा सा ध्यान देना कि एरर हमेशा किससे कम आनी चाहिए 5%. 5% से कम. अगर मोर देन 5% है, टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा. समझा? Yes, sir. हाँ. सो ये होता है इफ यू नो द मैथमेटिक्स. आप पहले से दिमाग रखोगे कि यार हमारा आंसर, आपको पता होता है कि टीचर ने बताया कि चलो जी की वैल्यू कैलकुलेट करो. आपको पता है जी की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है 9. 9. ये पता है ना जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने सुना होगा. नहीं सुना तुरंत बोल दिया करो नो सर, नहीं सुना, टेंशन नहीं लेना है. थोड़ा सा शायद No, क्लास sir. 7th में रहता है, जब हम वेट लिखते हैं, वेट होता है ना मास इनटू जी. हाँ. ठीक है, अगर नहीं है सो अपन नेक्स्ट चैप्टर पे सीखेंगे इसको. सो मैं भी यहाँ से इग्नोर करता हूँ इसे. बट लेट से मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है 10, तो आपको पता है कि 10 का 5% कैसे निकालते हैं 10 into 5/, 100. कितना आंसर आएगा 0.5. 5. तो आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय कि एरर आपका इससे कम आए. अगर ज्यादा आ गया तो बाद में फिर मार्क्स नहीं मिलते. ठीक है ना? हाँ. तो बताएं यार मेजरमेंट का ये सेक्शन समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अगर आप 11th 12th में जाओगे तो नियरली 20 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होते हैं. कितने 20. 20 एक्सपेरिमेंट. तो वो मैं यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, बट मैं फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको सिखा दूंगा. ठीक है ना? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े थोड़े से कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स बताऊंगा कि यार ये चीज़ें कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज़ कैसे करते हैं. अभी मैंने सिर्फ रीडिंग ली है, मैंने ये नहीं बताया कि यार वो जो स्टूडेंट है 1.1 टाइम ले रहा है, वो पक्का अच्छी वॉच यूज़ नहीं कर रहा है. अगर वो मोबाइल यूज़ करता है तो पक्का जब वो पॉज करता है ना, तो ऐसा भी आंसर मिल सकता था 1.16, 1.18. समझे ना? Yes, sir. तो जब प्रिसीजन बढ़ जाता है एरर क्या हो जाती है कम. डाउन एरो मतलब Come. कम हो Come. जाता है, डिक्रीज. सो अपन ये नेक्स्ट लेक्चर में चीजें सीखेंगे. आज के लेक्चर में बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल चीजें थी. सो मैं चाहूंगा कि बिफोर नेक्स्ट लेक्चर आप एक बार प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे और आपको जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और हाँ, फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, यू मस्ट पार्टिसिपेट. एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास मुझे बहुत ही खराब लग रहा था, नो वन वाज आंसरिंग, बट लेटर ऑन एटलीस्ट काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे. तो ये ध्यान देना, इफ आई एम आस्किंग समथिंग आंसर करते जाओ. इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग इंटरप्ट मी इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम, आई वोंट माइंड. अगर आप बोलोगे सर मुझको ये नहीं समझ आया, आई विल एक्सप्लेन. ओके ना? बिकॉज दिस इज नॉट वीडियो लेक्चर, इट्स अ ऑनलाइन क्लास. आपको पार्टिसिपेशन सीखना होगा, बिकॉज इफ यू develop bad habits right now, they will give you problem in 9th and 10th upcoming classes. Okay, so अभी से ही अच्छी हैबिट्स रखना है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Sir. Okay then, I guess it is enough for today. Okay. Yes, sir. Bye. Okay, bye bye. Bye, Bye sir. bye all of you. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, Bye, bye sir. bye. Thank you, sir. Bye bye all of you.